हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकेबुलरी अप टू मेंस लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। तो आज का हमारा पहला फ्रेज है जॉग समवंस मेमोरी। मींस किसी की कोई बात याद दिलाना। फॉर एन एग्जांपल, आई शोड हिम एन ओल्ड फोटो टू जॉग हिज मेमोरी अबाउट आवर स्कूल ट्रिप। सेकंड इज बी इन द रेड। मींस कर्ज में डूबा हुआ। आफ्टर बाइंग द न्यू कार ही वॉज इन द रेड फॉर सेवरल मंथ्स। To pay the debt of nature means मर जाना. The old man finally paid the debt of nature after battling illness for years. The next is to grease somebody's palms means rishwat dena. He had to grease the officer's palm to get the paper done quickly. The fifth is on tenterhooks. मीन्स बेचैनी पूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग ऑन टेंटरहुक्स. प्लीज कीप दिस स्पेलिंग इन रिमेंबर. टेंटरहुक्स मीन्स TENTERHOOKS. टेंटरहुक्स. ओके. टू किस द रॉड मीन्स खुशी से सजा को स्वीकार करना. Means he kissed the rod and accepted the punishment without complaint. Next is run of the mill means साधारण व्यक्ति, a general man, or you can also say common man. The movie was just a run of the mill. मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ थी. रोमांटिक कॉमेडी, ऐसा कुछ नहीं कि खास कुछ अलग नया हो रहा हो. टू पुश वंस लक मीन्स द फॉर अ ग्रेट फॉर्चून. बेसिकली आप रिस्क लेते हो. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको एक फॉर्चून दिख रहा होता है. मीन्स यू हैव ऑलरेडी वन ट्वाइस. डोंट पुश योर लक बाय प्लेइंग अगेन. This is your second stage of vocabulary. The first is wild and woolly. So means असभ्य व्यवहार होना, यानी कि आप एक अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसी को बोलते हैं wild and woolly. His wild and woolly attitude made everyone uncomfortable at the formal dinner. Second is of the first water means for the highest quality. मीन्स सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला. हर सिंगिंग टैलेंट इज ट्रूली ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. यू नो ना वर्ड इज मीन बाय वर्ल्ड क्लास. वर्ल्ड क्लास मीन्स एक बहुत अच्छा एक लेवल होना, एट द हाईएस्ट लेवल यू कैन से ऑन द अर्थ. चेरी ऑफ द प्लान मीन्स टू गेट विक्ट्री. Despite tough competition, our team carried off the palm in the final round. Means carried off the palm यानी कि you carry the flow. आप flow को carry करते हो and you get win. Heavy tidings means बुरे समाचार, bad news. The sudden resignation of the CEO brought heavy tidings for the company because the CEO was a very nice person. Go the whole hog means doing it completely. If you are planning the party, go the whole hog and make it unforgettable. Next is to huff and puff means doing the work completely.
किसी काम को पूरी तरह से करना. He have and puff to finish the project before the deadline means बहुत मेहनत करना. एंड देन आप काम भी कंप्लीट करते हो. Wear the green willow means गहरी सांस लेना. After the intense workout, she was wearing the green willow. Next is weather the storm means storm एक तूफान को इंडिकेट किया गया है. एंड वेदर मीन्स अब तूफान मीन्स लाइक तूफान मीन्स लाइक कठिन समय कि आपका एक बहुत हार्ड टाइम चल रहा है एंड आप उससे पास आउट कर रहे हो. पास आउट फ्रॉम hard time. The startup managed to weather the storm during the economic downturn. During the economic downturn. This is the third part of vocabulary up to man's level. To heap coals of fire on somebody's dad. To heap मीन्स किसी को बुराई के बदले भलाई करना ताकि उसे पछताना. एंड दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. यू कैन ट्राई टू रिमेंबर इट. ओके. She helped him even after he insulted her, truly heaping coals of fire on her head. Draconian means कठोर कानून, strict कानून. Means many activists protested against the draconian law with bated breath. Means बेचैनी एवं चिंताग्रस्त. We waited with bated breath means you were very much conscious. आपकी बहुत एक बैड फेज में थे आप बिकॉज क्योंकि रिजल्ट्स क्या होने थे, अनाउंस होने थे. नेक्स्ट वन इज क्लाउड द इशू. क्लाउड मीन्स बात को उलझाना. आप सुलझाने की जगह आप क्या कर रहे हो, बात को और बढ़ा रहे हो. His vague explanation, vague means फालतू टाइप कि फालतू एक्सप्लेनेशन था. only clouded the issue further. To work against the clock means you are fight against clock. We had to work against the clock to finish the assignment. अगर आप डेडलाइंस को मैच करना चाहते हो you have to work against the clock. To lick one's chops means बेसब्री से इंतज़ार करना. देखो दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज इन जनरल फॉर्म ऑल्सो कि आप अपने आप पे नॉर्मल यूज कर सकते हो. टू टर्न द अदर चीक मीन्स शांति से जवाब करना. मतलब वॉट वी से कि आप बोलते हो ना कि अपने दूसरा का अलग करना. इसका क्या होता है कि वेरी पीसफुली आप क्या करते हो, आंसर देते हो. शी टर्न द अदर चीक एंड वॉक अवे. टू सेट बंस कैप फॉर मीन्स शादी के लिए अट्रैक्ट करना. She's clearly set her cap for him, always finding ways to impress. This is the fourth series. To swallow a camel means एक बड़ी बात सह लेना कि how you tolerate. You're tolerating power. It shows.
He swallowed a camel by tolerating all the unfair criticism. जितना भी उस सर में दुर्व्यवहार हुआ हुआ साइलेंटली, बहुत कामली उसने क्या किया है, उनको रिप्लाई किया है। लाइक हॉट कोक्स, सॉरी, लाइक हॉट केक्स मीन्स हॉट केक्स, बहुत जल्दी से आपको क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली आपकी सेल्स हो रही है। द न्यू स्मार्टफोन्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स टाइम्स, लाइक यू कैन ऑल्सो से कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो एंड अगर ये हिट जाती है तो योर सेल्स कैन बी अपग्रेडेड। टाइम्स गोन बाय मीन्स पुराने दिन। द ओल्ड मैनिज्म, द ओल्ड मैंशन रिमाइंड्स मी ऑफ टाइम्स गोन बाय। ऑन द बम मीन्स स्ट्रे, आप जीवन जी रहे हो। इस ही स्पेंड अ फ्यू ईयर्स ऑन द बम बिफोर सेटलिंग डाउन। ऑन द बम मीन्स आप एकदम बहुत एक खराब जीवन जी रहे हो, बस लगे हो काम में लगे हो। दैट इंडिकेट्स ऑन द बम। द नेक्स्ट इज टू गिव अ वाइड वर्थ टू। व्हाट डज मीन बाय टू गिव अ वाइड वर्थ टू? मीन्स to stay away from something or someone, from something or someone, to give a wide berth to that topic during the meeting. Beside the mark means मुद्दे से हटकर, his comment was completely beside the mark. Next is banned the bro means डांटना, scold करना। The teacher banned her bro, यानी कि डांटना, स्कॉल्डिंग करना। At the noisy students, at cat's paw means कठपुतली बनना। He didn't realize he was just a cat's paw in their plan. This is the vocabulary for the fifth part. By a long chalk means बहुत ज़्यादा अंतर से। She won the competition by a long chalk. To make a man bleed means आप एक्सप्लॉइट करते हो, शोषण करना। The company really made its workers bleed during the layoff, है ना? So bleed, make, whoop it up means आप बहुत सेलिब्रेट करते हो लाउडली। लाइक काफ़ी बार हम एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। द फैंस whooped it up after the team's victory, लाइक ये चीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल के अंदर भी, जब विराट कोहली ने अच्छा से स्कोर किया था। नेक्स्ट इज अप अगेंस्ट द बॉल, यानी कि आप मुश्किल में होते हो। आई वॉज अप अगेंस्ट द बॉल विथ नो मनी एंड नो जॉब। तो जब ये फियर होता है तो आप बहुत बड़े गंदे तरीके से काम करते हो। आप अगेंस्ट द वॉल मतलब कि एक दीवार आपके सामने लगी हुई है एंड आप चाह रहे हो कि आप उस पर कूदो, कैसे कूदो, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मुश्किल में होना बेसिकली, कि आप कुछ और दिख ही नहीं रहा है। दैट इज द सिचुएशन। स्पिन बंस वी, स्पिन बंस मीन स्पिन तो मीन्स समय को आप टाइम वेस्ट,
पेपर ओवर द क्रैक्स मीन्स आप क्लियरली समझ सकते हो कि कुछ क्रैक्स है, आप पेपर रख रहे हो, मतलब व्हाट डू वांट टू से कि यू आर हाइडिंग द पेपर, नॉट यू आर हाइडिंग द क्रैक्स। समस्या है छिपाना। They try to paper over the cracks in their relationship. So thank you.